चलिए सीधे लोकसभा का रुख करेंगे। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। You are a leader of opposition. Okay. Or, So let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. What? I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side, you are saying, I will not mention the name. Again, you are mentioning the name. I'm saying so I will I think not you are mention. not ready to avoid. Please. Okay. Anyway, so I will not go into the names, but I would like to say. I think so. You have to speak only on budget. अरे बैठिए सुशी, आप बजट पे बोलिए ना. There is a general discussion on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think. Nice. So, Speaker sir. अब तो so I will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने तो दीजिए सर. So the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have. You and your member have not made any question. I believe that day. Then Piyush Goyal had made a statement on the floor of the house. सर मुझे अब कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. Okay. Thank you. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं, kindly conclude. So, we have buckled on tariffs. We have handed out our data, given up control over digital trade rules, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized, massive American farms. Our textiles have been wiped out. Bangladesh now is going to wipe out our textile industry. Our energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. लॉजिक नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो this is a wholesale surrender, and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not saying anything. आप रिपीट बार एक चीज को हम रिपीट कर रहे हैं. हमने शुरू से सर आप लोग बैठिए ना. ये बोल सकते हैं. बोलने दो उनको. इसको कोई रूल मालूम नहीं है. पीछे से खड़े हो जाते हैं बिना मतलब का. इनका लीडर ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं. सर आपने एक रूलिंग दिया है. मिस्टर राहुल सर, बीइंग अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, ही से मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो आपने रूलिंग दिया है, मैंने तब भी कहा, राहुल गांधी जी ने बार रिपीट किया है. हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे. आप फिर से रिपीट किया. दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं
चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं, और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन। Kindly take seat. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir, I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly you Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. that you have to just give in advance, and that you have No, to. no, sir, submit. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication now. You're not giving it to me. आप अपनी स्पीच को रखिए, आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको मिस्टर पुलाज जैसी शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट। उनको बोलिए भाषण। सर यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था। Speaker, आप कंक्लूड करें। sir, Speaker, sir, Minister has asked me. फिर मिनिस्टर की बात मत करिए। But बोलो तो conclude तो करने दीजिए हाँ, sir. conclude करिए। Sir, Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to- Here you are only speech No, but on I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. Speaker, sir, the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी। Sir, the evidence is आपने that Government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. K.C. Venugopal बैठिए. I am not allowing you. K.C. Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If I have already, if you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई किस तरह नहीं Speaker, sir. नहीं ये Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया, उसके sir. बाद नहीं फिर ले रहे हैं। नहीं लिया, sir. नहीं ये नहीं लिया। लीडर अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि Speaker साहब, मैंने बोलने तो दीजिए, खत्म व्यवस्था करता दी, हूं, मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, बोलूंगा सर। बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे।
या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे मेंबर्स कितने संतुष्ट होंगे। सभी अगर मेंबर से पार्लियामेंट के किसी भी पार्टी की बात किया जाए तो स्पीकर साहब के रात को 12-12 बजे तक सभी मेंबर्स को बुलाते हैं और आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो आज जिस तरीके से आप करेंगे, क्या बात आप करेंगे, ऐसे थोड़ी तरीका होता है। हाँ? आप ही बोलते रहेंगे। Allow him to conclude, sir. देखिए केसी वेणुगोपाल जी, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे हैं। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट में बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। चलिए खत्म करिए। Speaker sir, I'm concluding. Speaker sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. 1 second, please. I have the paper. Now I said to you, 1 second. I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here, you want me to authenticate there, that's not a problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said, I think so. Can I conclude? Sir? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. श्री अनुराग, हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अभी प्रोसेस ऑथेंटिक, क्योंकि हमने पहले कह चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। देयर इज अ प्रोसेस टू सबमिट द ऑथेंटिकेशन, वो तो हम मांग करेंगे और लीडर ऑफ ओपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे। ड्यू प्रोसेस से आप करना है, लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, आप सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। वो ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको एग्जामिन होगा। श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, संजय जायसवाल जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है 349, कौन सा? 349(17) shall not leave the house immediately after delivering the speech। ये भागने के आदि है और अभी भाग गए हैं अपना स्पीच खत्म करने के साथ। इस तरह के व्यक्ति को बोलने का परमिशन नहीं है। श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे, अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। और उनके भाषण के बाद मैं शुरुआत तो ये कहूंगा, एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे नहीं। कृपया आप लोग कितना बदल गया भारत, हो जाए, मगर आप माने ही नहीं। काइंडली
I will request to everybody, kindly take your seat. Kindly take your seat. Please. बोले सर। एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। वो निर्मला जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। केवल बजट ही नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का आपने कारण दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं और सबकी जरूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं, ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूं कि इंडियन वुमेन आर बॉर्न इकोनॉमिस्ट विद रेयर फोरसाइट एंड आर नेचुरल अकाउंटेंट्स बाय इंस्टिंक्ट, तो कहना गलत नहीं होगा। ये बजट सर्वमंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। Budget 2025-2026 is a continuation of a 12-year reform express that has moved India from policy paralysis to policy performance, from leakage to delivery, from megabytes to gigabytes, from megawatts to gigawatts, from corruption to confidence, from cut money towards kartavya. Earlier government ran schemes, this government runs systems. Earlier government distributed doles, this government builds capacity. Earlier there was a file movement, in this government there is fund movement. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, this budget is a beacon of hope and progress for Viksit Bharat. It is aptly a grains to gigabytes, from Jan Vishwas to Jan Kalyan budget, transitioning India from traditional agriculture, that is grains, twinned with digital future, that is gigabytes, rooted in public trust, that is Jan Vishwas, and delivering universal welfare, that is Jan Kalyan. This is not just a physical document, sir. It is a roadmap for inclusive growth, fiscal prudence, and national rejuvenation. बजट में सबका जिक्र भी है और सबका फिक्र भी है। सरकार की सोच स्पष्ट है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। जहां इनके समय विकास की पगडंडियां नहीं थी, वहां हम विकास की एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की बजट का तुलना करोगे तो इनका बजट ड्राइंग रूम में बनता था, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ बजट है। इनका बजट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, मोदी सरकार का बजट सबकी भागीदारी वाला नेशनल मिशन है। जब हम बजट निर्माण पर चर्चा करते हैं तो किचन से लेकर कारखाने तक
गांव से लेकर शहर तक सबकी आकांक्षाओं को शामिल करते हैं। मोदी सरकार के 4 आयाम गरीब, महिला, युवा और किसान। इसका मतलब है युवा की उड़ान, महिला का सम्मान और सशक्तिकरण, गरीब का उत्थान और किसानों की समृद्धि की प्रगति। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ये बातों का बजट नहीं, ये वादों का बजट नहीं, ये विश्वास और नवाचार का बजट है। ये विकसित भारत का बूस्टर डोज होने वाला बजट है। हमने इसके 3 कर्तव्य निश्चित किए हैं जो इसका आधार है: उत्पादकता को बढ़ावा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका विश्वास। इन 3 कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है माननीय सभापति जी, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को बरकरार रखें, इसे और भी अडेप्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं। दूसरा, हम फाइनेंशियल सेक्टर को और रोबस्ट और रिजिलियंट बनाएं। तीसरा, हम अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। दिस बजट कैरीज फॉरवर्ड द A to Z रिफॉर्म एक्सप्रेस रनिंग टुवर्ड्स अ विकसित भारत। A for A, Annadata to Ankalyan. B, bold reforms to biopharma Shakti. C, chips and semiconductors to connectivity. D, drone city to digital India and defense modernization. E, education excellence to electronics and energy independence. F, fiscal prudence to fintech revolution. G, Garib Kalyan to G, Gram G and GST reforms. H, health revolution to housing for all. I, innovation to infrastructure and IT revolution and income tax reforms. G, Jan Dhan to Jal mission. K, Khelo India and Khadi rejuvenation to Kisan Samman. L, livelihoods to labor reforms. M, manufacturing and MSME to make in India and medical colleges. N, Nari Shakti to nutrition. O, orange economy to opportunity creation. P, policy and productivity to Purvodaya and Pragati. Q, quality of governance and quantum computers. R, railway to R&D and rural revival. S, startup India and stand up India to skill India and Saksham Sugme Samrit Bharat. T, telecom and technology relevation to tech simplification. U, urban transformation to Udan Unnati. V, Vanchit Vikas to Viksit Gram to Viksit Bharat. W, world class infrastructure to waterways. X, ports to X factors. Y, Yuva Shakti to Yugain Bharat. And Z, zero tolerance for corruption to zero poverty Bharat. This reform express has no brakes, sir. 2014 में जब हमारी सरकार आई तो सवाल ये पूछा गया क्या देश में सही मायने में रिफॉर्म्स आ सकती हैं, क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जा सकती है, क्या गरीबों का कल्याण और गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है। उसका उत्तर था। तो देखिए, बजट पर लगातार चर्चा जारी है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों